Good morning, friends. In fact, I'll say good afternoon, friends. Uh, Welcome to our fourth doubt session. Once again, बहुत मात्रा में doubts आए. As I told you, doubt is always a positive sign. It means that you are thinking. It means that you are inclined. आपका काम है डाउट पूछना, मेरा काम है डाउट सॉल्व करना. So let's start with the entire process. One unique thing that I found in your doubts was that yes, I'm dealing with new generation kids, because I got doubts which were dealing with YouTubes. I got doubt which were dealing with copyrights, because you probably is a generation के जो already कुछ videos बना रहा है अपने. You are probably that generation जो अपनी खुद की चैनल चला रहा है, या फिर आपके दोस्त को आप जानते हो जो खुद की चैनल चला रहा है और आपको कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यूज आए हैं. तो कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकली कॉपीराइट को आई से फेस किया है. एंड दैट्स वेयर आई थिंक यू आर अ जनरेशन हु विल अंडरस्टैंड copyright in a much better fashion than what earlier generation kids used to do. So with that understanding, let us start with the entire process. Before I start with the process, one of the best doubt that I got, it is not there in this list because किसी ने मुझे directly पूछ लिया, मगर बहुत बढ़िया doubt था. Doubt क्या था? तो हमारे ये जो पूरा 4 सेशन का पूरा I'll say ये पिछले 4 सेशन गए, that was all dealing with basically two aspects, asset and liability. अब asset क्या था? तो if you can understand, it said asset is any right or a property having realizable value and is owned by business. And why will business own it? For number one, generating revenue for itself. Second, generating revenue by lending it to others or for appreciation. It will include stock, but it won't include goods. This was first part of the definition. इसी का दूसरा वर्जन भी देखा, या तो आप ये डेफिनेशन लीजिए या तो दूसरा लीजिए. किसी ने मुझे ये भी पूछा, सर एम आई सपोज टू राइट बोथ द डेफिनेशंस व्हेन आस्क्ड. वंस अगेन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आई विल से चॉइस अगर होती है तो यस, यू आर ओनली सपोज टू मेंशन वन ऑफ द डेफिनेशन, बट व्हेन यू आर आस्क्ड एनीथिंग इन एग्जाम, मेक श्योर दैट इफ यू नो इट, शो इट. अगर 2 डेफिनेशन आती है 2 लिखिए, अगर 3 आती है तो 3 लिखिए, बिकॉज वो आपका आखिरी मौका होता है दुनिया को प्रूव करने का कि आपको कितना आता है. तो मेक श्योर दैट यू आर प्रूविंग टू फुलेस्ट. दूसरा डेफिनेशन कहता है असेट इज एनी राइट और प्रॉपर्टी हैविंग realizable value owned by the business from which benefit is yet to be received.
when on last day of current financial year. So the key points were, one is it is a right or a property. Second is it has realizable value. Third is it is owned by the business. Why it is owned? So generating revenue for itself, generating revenue by lending it to others, or for appreciation. It will include stock but won't include goods. आगे any rights of property having realizable value and is owned by the business from which benefit is yet to be received when on the last day of the current financial year. ये आपके की पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको समझना है. अगर ये की पॉइंट समझ में आ गए तो ये डेफिनेशन पूरी समझ में आ जाएगी. राइट which is intangible, which can't be seen, can't be felt, can't be touched. Yes, there is always a, I'll say, exception to the rule. There are certain intangibles which you can feel. There are certain intangibles which you can see, and there are certain intangibles which you can't see and feel. But touch is something which is definitely not there. Hope that is clear. आपको जैसे as I told you, goodwill is a power with me to earn one and above others. If you ask a Mercedes owner, he will say, yes, I can feel that power. I can see that power because a guy is ready to pay 4 crores to buy my car. But the same guy won't pay 4 crores to buy a Tata car, a Hyundai car, a Honda car. So yes, the owner can feel it, owner can see it, but he cannot touch that right. He cannot touch that power. And that's why it is intangible. Hope that is clear. So yes, it may have that feeling. It may, आप महसूस कर पाओगे वो पावर को, आप शायद देख पाओगे वो पावर को, मगर आप टच नहीं कर पाओगे वो पावर को. जबकि टेंजिबल प्रॉपर्टी होता है, उसे आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो. Like this board is tangible, I can see it, I can feel it, I can touch it. This building is tangible, I can see it, I can feel it, I can touch it. This clothes of mine are tangible, I can see it, I can feel it, I can touch it. This vehicle which is standing downstairs is tangible, I can see it, I can feel it, I can touch it. That's property for me. Having realizable value, realizable means getting converted into cash. How do you get anything converted into cash? तो right of property cash में कैसे convert होगे? बेचने पर. But am I supposed to sell it? No, not necessary. It may be sold, it may not be sold. But बेचा नहीं बेचा वो important नहीं है, मगर उसमें बिकने की क्षमता होनी चाहिए. Which is owned by the business. Definitely it should be owned by business. किसी और का right of property, I cannot say it is my asset. वो किसी और का asset है. मेरा asset करने के लिए मुझे उसे own करना पड़ता है. Now why will I own it? तो answer is for generating revenue for itself. खुद के लिए पैसा generate करने के लिए. जो मैं करता हूँ, पार्क प्लाजा, निजामपुरा सेंटर, मांजलपुर सेंटर, ओपी रोड सेंटर, all 4 properties are owned by SCPL. What is SCPL doing out of it? Did I buy that property so that आज मैं मान लो 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदता हूँ and I'll be waiting कि नहीं चलो 5 करोड़ होगा तो बेच दूंगा? नहीं, I didn't bought it with the intention for appreciation. I didn't bought it to lend it to others and earn rent out of it. But why did I bought it? So that I can do business in it and generate revenue out of it. Hope that is it. That is first reason. Second is by lending it to others. You may lend your property because as I told you, every asset has 2 things. Number 1, it has realizable value, and number 2, it has earning capacity. हर एक asset में कमाने की क्षमता है. आप उससे कमाते हो नहीं कमाते हो अलग बात है. जैसे ये पेन, 30 रुपए के पेन से, if you can understand, BMW खरीद ली, मगर यही 30 रुपए के पेन से हर कोई BMW कमा नहीं सकता ना. मेरे में वो क्षमता है, ये पेन में वो क्षमता है कि मैं इस पेन से वो एक्सट्रैक्ट करता हूं बेनिफिट जिससे आई कैन बाय BMW. होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो इट हैज कैपेसिटी, बट हाउ मच यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू. होप दैट इज क्लियर. सो ईदर आई यूज दिस पेन फॉर माई सेल्फ और आई लेंड इट टू अदर्स, और थर्ड इज अप्रिसिएशन. ये पेन के केस में नहीं, हर असेट में सारे केसेस नहीं सेट होते हैं. गोल्ड तो आपने सुना होगा 32,000 में खरीदा, 40,000 हो गया, बढ़ गया. दैट बढ़ना इज अप्रिसिएशन.
आपने सुना होगा लैंड से 2,500 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदी थी, आज उसके 7,500 है, बढ़ गया। पीपल बाय लैंड सो दैट जब बढ़ेगा बेच देंगे। शेयर्स में आपने सुना होगा कि शेयर्स खरीदी लिए 100 रुपया नो एक शेयर खरीदीशु, जे दिवसे 1000 नो थशे वेची काढशु, appreciation. So these are three reasons why you buy an asset. It includes stock, but it won't include goods. हमने बात की थी goods, खरीदा तो 14 के 14 पेन मेरे गुड्स थे, 10 बिक गया, 4 बचा, वो अब 4 गुड्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्टॉक। और स्टॉक क्या है? जो बेनिफिट रादर वो गुड्स जो बिकने बाकी है उसमें से 31 मार्च को बेनिफिट मिलना बाकी है, दैट्स व्हाई स्टॉक बिकम्स योर एसेट। होप दैट इज क्लियर। बहुत सारे लोग सर स्टॉक और एसेट में क्या फर्क है? अरे भाई एसेट डेफिनेशन है, उसका एक एग्जांपल स्टॉक है। स्टॉक इज एसेट, बिल्डिंग इज एसेट, मशीन इज एसेट, फर्नीचर इज एसेट, डेटर इज एसेट, cash is asset, bank balance is asset, goodwill is asset, patent is asset, trademark is asset, if you can understand, copyright is asset. This electric fittings are my asset, क्योंकि इनमें से मुझे benefit मिलना बाकी है। If it is owned by business, अगर if it is owned by me, then they are my personal assets. I'm not talking about myself, वरना वापस कंफ्यूजन होगा सर, ये जो आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही है वो SCPL का asset कैसे हुआ? नहीं, वो मेरा asset है। SCPL में जो ट्यूबलाइट जल रही है वो SCPL का एसेट है, क्योंकि अगर आज 31 मार्च होता तो अभी भी वो ट्यूबलाइट में से बेनिफिट मिलना बाकी है। इट इज ओन्ड बाय अस, वी आर यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ एंड इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा। होप दैट इज क्लियर एवरीवन। दैट वाज अ सेट फॉर यू। लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी इफ यू कैन अंडरस्टैंड is पहले तो it has to be a person, maybe legal or maybe biological, क्योंकि अगर पर्सन नहीं हुआ तो लायबिलिटी नहीं है, so it has to be person. असेट में क्या है? राइट और प्रॉपर्टी which is not a person can also be your asset. Car is not a person but it's your asset. Building is not a person, it's your asset. But debtor is a person and still it's your asset. Magar liability strictly has to be person, and the definition says liability is any person, firm, company or any institute. So basically all are person. You can say any person, वहां पर भी खत्म कर सकते हो, any person. You don't write so many things. Any person from our company or institute from whom business has received goods, services, cash or any other asset, but to whom business is yet to pay back when on last day of current financial year. So keywords क्या है हमारे? तो it is a person from whom business has received goods, services, cash or asset, but to whom business is yet to pay back on last day of current financial year. किसी ने मुझे पूछा सर असेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है? अरे यार दे आर पोल्स अपार्ट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, दिन रात, ब्लैक व्हाइट, असेट लायबिलिटी। यहां से ही लिखेगा yet to receive, yet to pay, opposite. Hope things are clear everyone. यहां पर बेनिफिट बिजनेस को लेना बाकी है, यहां पर बेनिफिट बिजनेस को देना बाकी है। Poles apart. Hope things are clear.
एवरीवन। नाउ यही लायबिलिटी में से याद यही डेफिनेशन में से आप कैश और असेट हटा दो और बाकी का पढ़ो तो ये डेफिनेशन बन जाएगा क्रेडिटर का। इट सेज एनी पर्सन, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूट फ्रॉम होम बिजनेस हैज रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विस, बस इतना ही रखो, बट टू होम बिजनेस इज येट टू पे बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वो बन जाता है क्रेडिटर। बहुत सारों ने ये पूछा सर लायबिलिटी और क्रेडिटर में क्या फर्क है? अरे लायबिलिटी हेड, क्रेडिटर इज वन ऑफ द एग्जांपल। किसी ने ये भी पूछा सर सोम सर जब बॉटल बेच रहे थे तो वो क्रेडिटर थे, मगर जब लोन दिया तो वो लायबिलिटी, फर्क क्या हुआ? बॉटल बेच रहा था, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, रादर राहुल सर का धंधा बोतल खरीद कर बॉटल बेच रहा है, तो ही बॉट गुड्स फ्रॉम मी, सो आई बिकेम हिज क्रेडिटर। बट व्हेन ही इज बोरोइंग कैश फ्रॉम मी, तो आई एम स्टिल अ लायबिलिटी, creditor is also a liability. As a bottle dealer, yes, Rahul sir is supposed to pay me back. As a bank, Rahul sir is borrowing from me, yes, Rahul sir is supposed to pay me back. So me as a bottle dealer, I am liability to Rahul sir's business. Me as a banker, as a bank, yes, I am liability to business. But हम दोनों का नाम अलग अलग होगा। मैंने पता है लास्ट सेशन में बोला था कि डाउट सेशन में कि फ्रूट होता है, बट हर एक फ्रूट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड दैट्स व्हाई वी नेम देम। वरना आम को आम क्यों कहा, केले को केला क्यों कहा, चीकू को चीकू क्यों कहा, अनार को अनार क्यों कहा, वाटरमेलन को वाटरमेलन क्यों कहा, सबको फ्रूट्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। लायबिलिटी इज लाइक फ्रूट हेड, उसके एग्जाम्पल्स क्रेडिटर अनार, बैंक लोन आम, कैपिटल केला, for example, if you can understand, they are just examples to the example of liability. Hope things are clear. आगे हमने देखा क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में अगर असेट की बात करें, मैं थोड़ा देख कर आता हूं, अकेला हूं रूम में, तो कि ये दिख रहा है कि नहीं आपको, फिर ऐसा ना हो पूरा लिख लूं और आपको दिखे ही ना। जस्ट अ सेक। ओके, परफेक्ट दिख रहा है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो असेट में assets were classified in 3 categories. One was based on appearance, second was based on period of benefit, and third was based on its realizable value. Based on appearance, कैसा दिखता है, तो उसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ बेनिफिट, करंट, नॉन करंट, बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, रियल, एंड fictitious. Tangible, which can be seen, felt and touched. We have already given lot many examples, so that is the most easiest classification. Intangible, which cannot be touched, which cannot be felt, which cannot be seen, but in few cases you can feel it, you can see it, but you cannot touch it. Some cases. Period of benefit, current asset. Current assets are assets which have benefit of one financial year from the last day of current financial year. यानी अगर मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 21 को खत्म होता है, तो जो असेट का बेनिफिट 31 मार्च 2022 से पहले खत्म हो जाएगा, उस असेट को हम कहेंगे करंट असेट, और जिसका बेनिफिट 31 मार्च 2022 के बाद भी रहेगा, उस असेट को हम कहेंगे नॉन करंट असेट। किसी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, जो इसमें नहीं था क्योंकि आई थिंक डायरेक्टली मुझे ही पूछ लिया, तो किसी सेंटर हेड को नहीं गया। उन्होंने पूछा सर व्हाट इफ, जैसे ये बिल्डिंग, तो मैंने बोला बिल्डिंग से कितना बेनिफिट मिलेगा,
तो ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा का तो उसे नॉन करंट असेट कहेंगे। कार से कितना बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा तो उसको भी नॉन करंट बोलेंगे। फर्नीचर 1 साल से ज्यादा तो उसको भी नॉन करंट बोलेंगे। बट व्हाट इफ कोरोना में घर बैठे बैठे मुझे थोड़ा ऐसे फिलोसॉफिकल ज्ञान आ गया और मुझे लगा यार एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम दौड़ रहे हैं वो क्यों दौड़ रहे हैं, एंड में तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, एंड यू मस्ट हैव रियलाइज दैट नन ऑफ योर ब्रांडेड क्लोथ्स यू आर सपोज टू रादर यू आर एबल टू यूज इन दिस 3 months, सब पाइल्ड अप थे आपके वार्डरोब में। यू ऑल्सो रियलाइज कि यार एंड में तो घर का खाना ही अच्छा है, बाहर के खाने में तो प्रॉब्लम है, ये भी आपने रियलाइज किया होगा। आई एम सॉरी इफ एट ऑल एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर इनटू रेस्टोरेंट, बट वी रियलाइज दैट वी कैन डू विदाउट इट। वी आल्सो रियलाइज कि यार मूवी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। वी आल्सो रियलाइज कि बॉस वो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, कितनी भी महंगी हो उसके बिना भी चल सकता है। वी रियलाइज दोस थिंग्स। सपोज ये रियलाइजेशन एकदम मेरे सिर में घुस गया और मुझे लगा चलो छोड़ो, आज से बहुत इतना जो 14 घंटे काम करते अब काम नहीं करना है, 2-3 घंटे काम करेंगे और खत्म। और वो 2-3 घंटे भी आप सिर्फ ऑनलाइन, फेस टू फेस नहीं। एंड जैसे ये तत्व ज्ञान मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा चलो इस साल बिल्डिंग, गाड़ी, फिर वो बेंच सब बेच देते हैं। नाउ 31 मार्च इफ यू कैन अंडरस्टैंड, उनमें से बेनिफिट मिलना बाकी था। एंड आई यूज द वर्ड यू इंटेंड टू यूज देम फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। बट इस 31 मार्च को आई एम नॉट इंटेंडिंग टू कीप दिस बिल्डिंग फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। इस 31 मार्च आई एम नॉट इंटेंडिंग टू कीप दैट कार फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। इस 31 मार्च आई एम नॉट इंटेंडिंग टू कीप माय फर्नीचर फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। देन इन दैट केस on this 31st March, this building, this car and this furniture won't be shown in my non-current asset, but they'll be shown in my current asset. फिर वो बिल्डिंग बिका नहीं बिका, बेंच बिका नहीं बिका, कार बिका नहीं बिका, वो अलग बात है, क्योंकि बिल्डिंग बेचना मुश्किल है ना। ये सिचुएशन में अगर मैं बिल्डिंग बेचने भी रखूंगा तो आज रखा कल बिक जाएगा, नहीं 2-3-4 साल लग सकते हैं। That doesn't make it non-current. Remember, the day I intend I want to sell this building, it becomes my current asset. The day I intend I want to sell this car, it becomes my current asset. The day I intend I want to sell my furniture, it becomes my current asset. But till I don't intend this, it is my non-current asset. जिसने भी पूछा था बहुत बढ़िया सवाल पूछा था। Hope things are clear. Real assets which have realizable value, which can be converted into cash. Fictitious word comes from word fiction. Fiction is unreal, imaginary. These are the assets which do not have the basic characteristic realizable value. यही नहीं है इनमें, तो टेक्निकली तो वो असेट ही नहीं बने। सही बात है आपकी, मगर फिर भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको असेट की जगह दिखाते हैं। अब लोग ऐसा क्यों, तो इसलिए मैंने बोला था थोड़ा वेट करो, 4-5 सेशन के लिए वेट करो, फिर ये पूरा कनेक्ट करूंगा और बताऊंगा ऐसा क्यों। Hope that is clear. So though they are not assets, they don't have basic characteristic of asset, but still they are shown on asset side. They are shown as asset in books of business, and that's where they are termed as fictitious or unreal or imaginary asset. किसी लोगों ने पूछा कि सर एग्जाम्पल दो, तो शायद आपने मेरा लेक्चर अच्छी तरह से सुना नहीं है। मैंने बोला इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, 4-5 सेशन के लिए रुक जाओ, फिर इसकी बात करेंगे। Hope things are clear. That was classification of asset. As far as classification of liabilities concerned, तो वो 2 हिस्सों में बटा। One was based on person and second was based on period. You can P and T. Person में अगर आपको सेकेंड पार्टी ने रिसोर्सेज दिया, आप यानी बिजनेस जो भी देख रहे हो बिजनेस के एंगल से देख रहे हो, अगर बिजनेस को सेकेंड पार्टी ने कोई बेनिफिट दिया है जो बिजनेस को लौटाना बाकी है, देन दैट इज टर्म्ड एज माय इंटरनल लायबिलिटी। अगर आपको थर्ड पार्टी ने कोई रिसोर्सेज दिए हैं जो बिजनेस को लौटाने बाकी है, yet to be paid back,
तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल liability. Hope things are clear. Rahul sir was internal liability to business. Kun sir, Mehul sir, Soham sir, bank, we were all external liability to business. Hope that is clear. Period की बात करें तो दो हिस्सों में बंटता है. One which is current and second which is non-current. अगर 31 मार्च is last day of my financial year और अगले 31 मार्च तक मुझे इसे पे बैक कर देना है तो इसे कहेंगे करंट लायबिलिटी. और अगर पे बैक करने के लिए मेरे पास 31 मार्च से ज्यादा का 22 से ज्यादा का समय है उसे कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी. किसी ने पूछा सर हाउ मच नॉन करंट इट कैन बी. वो तो डिपेंड करता है ना. सर किसी ने पूछा सर कौन सर ने कितने टाइम के लिए पैसा दिया था. डिपेंड करता है. वो हमने उस समय हम करंट नॉन करंट पर थे नहीं. इफ यू रिमेंबर वो तो बहुत आगे कैपिटल समझाने के समय वो हमने केस स्टडी देखा था. इसलिए आई नेवर फोकस कि कौन सर को पैसा कब लौटाना है. मगर जब जैसे ही लायबिलिटी पर आए तो हम पीरियड की बात करने लगे. इफ यू कैन रिमेंबर मेहुल सर ने बोला 30 दिन में लौटाऊंगा. मैंने बोला 20 दिन में पैसा तेरे को लौटाना है. बैंक ने बोला 10 साल में तेरे को पैसा लौटाना है. जैसे हम लायबिलिटी पर आए हम पीरियड की बात करने लगे क्योंकि हमारा फोकस लायबिलिटी पर था विच इंक्लूड्स कैपिटल. मगर जब कैपिटल कर रहे थे हमारा फोकस सिर्फ कैपिटल पर था, कुंसर पर नहीं था. इसलिए कुंसर को कब लौटाना है वो कहानी का हिस्सा है जो हमने बात नहीं की थी, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे. इट मे बी करंट, इट मे बी नॉन करंट. कहानी क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 4 सेशन. नाउ कंसीडरिंग दिस लेट्स स्टार्ट विद योर डाउट्स. जो इसमें कवर हो गया वो मैं वापस नहीं बोलूंगा, जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे. सर कैन यू गिव ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लायबिलिटी. ब्रीफ नहीं, मैंने डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लायबिलिटी दिया है. होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन. सेकंड, आई एम नॉट क्लियर अबाउट नॉन करंट असेट एंड पेटेंट. होप नॉन करंट असेट इज क्लियर. असेट है कि नहीं है वो जानने के लिए हम 31 मार्च लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को चेक करते हैं कि जो राइट एंड प्रॉपर्टी जिसका रियलाइजेबल वैल्यू है व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, इज इट हैविंग बेनिफिट येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम इट ऑन 31st March 21. इफ यस देन इट इज असेट. अगर वो बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म होने वाला है ऐसा हमारा इंटेंशन है तो वो करंट हो गया. ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है तो नॉन करंट हो गया. साथ में आपने पूछा सर पेटेंट क्या होता है. तो अगर आपने कोई भी इन्वेंशन किया जो सिर्फ आपने किया, आपसे पहले किसी ने नहीं किया, तो आपका उस इन्वेंशन पर हक बन जाता है. बचपन में याद है हम आई एम फ्रॉम बीएचएस, ठीक है. तो हमारे बीएचएस में ग्राउंड वाज एट 2 लेवल्स. पहले लेवल पर ऊपर क्रिकेट पिच और वॉलीबॉल और वो सब था. फिर देयर यूज्ड टू बी दिस स्लांट जहां पर ऐसे वो ब्रिक का कुछ बनाया हुआ है कैसल टाइप, और फिर नीचे का ग्राउंड है. वो नीचे के ग्राउंड में एक्सट्रीम प्राइमरी साइड पर स्विंग्स हुआ करते थे हिंच के. तो जब हम प्राइमरी में थे तो वी यूज्ड टू रन. जैसे ही रिसेस पड़े ना हम दौड़ते थे. वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सब अपना अपना हक जमाने के लिए दौड़ते थे. और जाकर जो सबसे क्लास में तेज होता था ना, जो जिसका रनिंग फास्ट है, उसको हम रिसेस में एकदम आगे की बेंच पर बिठाएंगे कि यार तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 4-5 रुमाल दे देते थे कि तू जा भाग और स्विंग्स पर जाकर रुमाल रख दे. जिसका रुमाल पहले रखा उस स्विंग पर उसका हक. फिर वो स्विंग पर सिर्फ वो स्विंग कर सकता है और उसके 2 स्विंग कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता. वो जो हक है वो दिखता नहीं. आप बोलोगे स्विंग तो दिखा ना, स्विंग दिखा, मगर कोई और आता है मैं आज स्विंग करूं, नहीं तू नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस पर मेरा हक है. कहां लिखा है, कहां दिखता है? नहीं दिखता है, मगर वो इंटेंजिबल है इसलिए नहीं दिख रहा है. मैं आपके लेवल पर बात कर रहा हूं. यही रुमाल रखना जब आप बड़े हो जाओगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर आपको लिखवाना पड़ेगा कि देखो ये रिसर्च. गवर्नमेंट भी रिसर्च करेगा, उस रिसर्च का रिसर्च करेगा. आप बोलोगे यार देखो मैंने फोन पहली बार बनाया है, मगर बस फोन पहली बार थोड़ी बनाया, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बना दिया. तो गवर्नमेंट मूर्ख नहीं है. जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो आपका इनोवेशन या रिसर्च को
पेटेंट करता है, दे विल डू ऑल द रिसर्च कि दुनिया में और किसी ने ये किया है। अगर वो ढूंढते हैं कि नहीं और किसी ने नहीं किया इसका इन्वेंशन, तब जाके उस पर आपका हक बनता है। दे विल रजिस्टर इट। वंस इट इज रजिस्टर्ड, दैट रिसर्च, दैट इन्वेंशन बिकम्स योर्स, आपका हक बन जाता है उस पर। फिर दुनिया में कोई भी, आई रिपीट, कोई भी उस रिसर्च से अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो दैट पर्सन, नंबर वन, यू कैन स्टॉप देम, एंड इफ दे कंटिन्यू दे हैव टू पे यू फॉर व्हाटएवर दे अर्न, एंड दैट टू विथ योर परमिशन। सो दैट्स पेटेंट। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। I don't understand topic classification of asset. I am confused between assets and creditors. Asset alag, creditor alag. Hopefully that is clear. Hopefully classification of asset is clear. How do you classify? See, classification is nothing but आपके स्कूल में there are different ways I can classify a class. आपका जो क्लास होता है 10th A, 10th B, 10th C, जो क्लास में आप पढ़ते थे, I have different ways of classifying. One is based on your sex, guys and girls. Second is based on percentage. 80 plus, 80 below. Third is based on sports ability, who are good in sports, who are not good in sports. See, basically I am classifying the same set of crowd but in different ways. Guys and girls तो अलग हो गए, लड़के यहाँ पर आ गए, लड़की यहाँ पर आ गई। दूसरा वे ऑफ क्लासिफाइंग 85 प्लस एंड 85 बिलो, तो उसमें 85 में लड़के लड़की दोनों आएंगे, जो 85 ऊपर वाले, और 85 बिलो में जो लड़के लड़की है वो दोनों साथ में आ जाएंगे। सी, आई एम क्लासिफाइंग द सेम क्राउड बट इन डिफरेंट वेज। On the same line, classification of asset, it is classifying the same pool of asset but in different ways. अगर appearance कौन कैसा दिखता है तो tangible intangible। अगर पीरियड ऑफ बेनिफिट, किसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है और किसका बेनिफिट 1 साल से कम है, करंट नॉन करंट। बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, कौन सा असेट बिक सकता है और कौन सा नहीं बिक सकता है, तो वही ग्रुप में से जो बिक सकते वो एक साइड, जो नहीं बिक सकते वो दूसरी साइड। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। What happens when company has to pay some another company and before that only becomes, because of some reason company which has to pay that shuts down? कुछ नहीं, अगर जैसे ही कंपनी बंद होती है ना, देखो कंपनी बंद हो गया, उसके जो भी असेट्स है वो सारे बेच दिए जाएंगे, रियलाइज कर दिए जाएंगे। जो पैसा आएगा उससे उसकी सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाएगी। अगर पैसा इनफ है तो सारी लायबिलिटीज पे हो जाएगी, पैसा बच जाएगा। किसका हो गया? ओनर का। तो ओनर को फायदा हो गया कंपनी बंद होने का। दूसरा पॉसिबिलिटी, सारे असेट्स बेचे, पैसा आया, पैसे से क्या करेंगे? सारी लायबिलिटीज पे करेंगे। मगर सारी लायबिलिटीज पे करने में पहले बाहर वाले को, थर्ड पार्टी को पे करने का, फिर पैसा बचा अंदर वाले को पे करने का। अगर पैसा नहीं बचा तो इसका हो गया नुकसान। अगर यहीं पर पैसा खत्म हो गया तो इसका भी नुकसान। कंपनी बेची, सारे असेट्स बेचे, ठीक है, पैसा आया, सबसे पहले किसको पे करेंगे? कुन सर को, बैंक लोन को, सोहम सर को। फिर पैसा बचा तो राहुल सर को। पहले थर्ड पार्टी, बंद होगा तब की बात करो, फिर सेकंड पार्टी। अगर कंपनी के पास बहुत सारा असेट था जिसमें से बहुत सारा पैसा आया, कुन सर को भी पे कर दिया, बैंक लोन भी पे कर दिया, सोहम सर एज अ क्रेडिटर, वो बॉटल के डीलर, उनको भी पे कर दिया, फिर भी पैसा बचा, तो वो सारा राहुल सर का। मगर असेट बेचे, पैसा आया, कुन सर को पे करने गए, बैंक को पे करने गए, सोहम सर को पे करने गए, वही पैसा खत्म हो गया, तो राहुल सर को कुछ नहीं मिलेगा, उनके 40 लाख डूब गए। आप लोग ऐसे कैसे डूब गए? बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है, दिस इज लॉस, नुकसान हो गया, बिजनेस धंधे में नुकसान हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी, असेट बेचे, कुन सर को, सोहम सर को, बैंक लोन, राहुल सर को तो कुछ नहीं मिला, मगर इनको भी कुछ नहीं मिला, तो इनका भी लॉस हो गया और राहुल सर का भी लॉस हो गया। सी, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, यू हैव टू फेस बोथ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन कंपनी क्लोजेस डाउन। हाउ डज मैकडॉनल्ड कम टू नो दैट समवन हैज यूज्ड देयर लोगो? कम ऑन यार, मैकडॉनल्ड्स इज अ बिग कंपनी। अगर आप वडोदरा में मैकडॉनल्ड्स खोलोगे उनकी परमिशन के बिना, ट्राई करो, तुम्हारे घर पे आके तुमको उठा ले जाएंगे, ठीक है? दे आर बिग कंपनी। इवन फॉरगेट अबाउट दैट, सी आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, मैकडॉनल्ड्स छोड़ो, तुम सिंदरोड जाओगे ना किसी के साथ तो भी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से, जिसके साथ गए उसने सेल्फी रख दिया,
तुम पकड़े जाओगे। सो आजकल ये सोशल मीडिया के, हाँ पहले भी उतना ही मुझे, सी व्हेन यू स्टार्ट अप अ बिजनेस यू हैव टू रजिस्टर इट। गवर्नमेंट में कहीं पर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करोगे पकड़े जाओगे। वो बोलेगा कौन सा रेस्टोरेंट चालू है, मैकडॉनल्ड्स, वो बोलेगा 1 मिनट, हैव यू टेकन दैट परमिशन? स्टारबक्स, हैव यू टेकन? स्टारबक्स तो अंदर आने से पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है स्टारबक्स आप अंदर आ सकते हो, इंडिया में आकर बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने इंडिया, वो लोग आएंगे और सबको फ्रेंचाइजी देंगे। आप बोलोगे सर फ्रेंचाइजी क्या होता है? दूसरों का नाम और दूसरों की प्रोडक्ट यूज करने का राइट देंगे। इट इज वन ऑफ द राइट, इंटेंजिबल एसेट है, जिसके लिए वी हैव टू पे देम। ऐसे ही मैकडॉनल्ड्स थोड़ी खोल देंगे कि जगह पड़ी है चलो एक काम करते हैं मैकडॉनल्ड्स चालू कर दिया। यू कांट डू दैट। बीबीए बाजीगर थोड़ी है, या फिर स्कूल का फनफेयर थोड़ी है। गेटिंग द आइडिया? सो मैकडॉनल्ड्स को ऐसे पता चल जाएगा। how do some YouTubers earn by singing the original version of song without buying the copyright of the song? See, once you reach to a level, आज कोई भी सिंगर होगा ना वो अपने सॉन्ग को कॉपीराइट कर देगा, कोई भी सिंगर, वंस यू रीच टू दैट लेवल। हाँ, जब तक मैं वो नया बंदा हूँ, आई एम अ न्यू कमर, मेरे फॉलोअर्स ही 3000 4000 है, तो फिर वो कॉपीराइट नहीं करूँगा। उसमें भी कर सकता हूँ, इफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सॉन्ग आई कैन स्टिल डू दैट। मगर जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, जितने भी वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले हैं, उन सबके गाने कॉपीराइट वाले होते हैं। इसलिए यू यूज इट इन योर यूट्यूब चैनल एंड यू विल इमीडिएटली गेट अ लेटर कि बॉस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कॉपीराइट वायलेशन किया है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार आपका गाना बजता भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप किसी का गाना रखोगे तो वो बजेगा नहीं। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि यूट्यूब आपने कॉपीराइट का वायलेशन किया। किसी का कोई ओरिजिनल क्रिएशन है, उसको पूछे बिना आप यूज नहीं कर सकते। होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Is patent used only for formulas and know-hows or subject related to that, or it is also used in courts as I have seen in movies? नहीं भाई, पिक्चर में मुझे नहीं पता कौन से पिक्चर की तू बात कर रहा है, मैं सारे पिक्चर देखता हूँ, मगर इट इज़ फॉर रिसर्च बेसिकली, फॉर्मूलाज के लिए होता है, इन्वेंशंस के लिए होता है, दैट वी यूज पेटेंट. If I know that Mercedes provides best cars, then I will definitely buy it. Then why there need of another right called goodwill? I don't know. See, when you buy one car, you don't get goodwill of Mercedes. No, goodwill of Mercedes तब मिलता है जब Mercedes as a company आप खरीदते हो. जब Mercedes as a company खरीदते हो, तो आपको सिर्फ उनके टेक्नोलॉजी का राइट, पेटेंट दैट इज ट्रेडमार्क का राइट, दैट इज वो उसका जो लोगो है उसका राइट, फिर अगर उसका गुडविल है, एबिलिटी टू अर्न ओवर एंड अबव दिस व्हिच आई स्टार्टेड विद, ये सब आपको खरीदना पड़ता है, बिकॉज दिस इज ऑल दैट दे हैव अर्न्ड अलोंग विद देयर प्रीमाइसेस एंड अलोंग विद देयर स्टॉक ऑफ कार्स. ये सारी चीजें तो है ही उनकी, मगर उसके साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी है, उसके साथ उसका एबिलिटी टू अर्न भी है, उसके साथ उसका लोगो भी है. इन सबके पैसे आपको चुकाने पड़ते हैं अगर आप कंपनी मर्सिडीज एज अ कंपनी खरीदते हो तो. होप दैट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. Doubt under the topic trademark, if a person cannot use M of McDonald's, then can any person open a branch of McDonald's as business? अभी बात की ना, फनफेयर नहीं है स्कूल का कि कोई भी नाम रख दिया चालू कर दिया. आप एक बार शुरू भी करोगे ना मैकडॉनल्ड्स के नाम पर, एज आई टोल्ड यू, घर आके उठा कर ले जाएंगे. इसलिए करना भी मत, सोचना भी मत. ठीक है, यू कांट यूज देयर M, forget about the entire name, forget about copying their own product. You can't sell burgers which are even tasting like McDonald's. You can't do that because that all, even that formula of making that patty what they are making, they have patented. You can't do that. Coca-Cola, कोला बनाना कितना आसान है यार. एक बेसिक इंडियन कंपनी भी कोला बना ले, बट कोको कोला का एक फॉर्मूला है, कितना शुगर डालो, कितना वो कोक डालो, एक फॉर्मूला है, उसका एक टेस्ट है, उसका भी पेटेंट है कोको कोला के पास. यू कैन कॉपी इट. देयर आर लॉट मेनी मशीन्स, वो कोला के मशीन्स आते हैं, मगर वो कोको कोला जैसा टेस्ट नहीं करेगा, वो थम्स अप जैसा टेस्ट नहीं करेगा, वो पेप्सी जैसा टेस्ट नहीं करेगा. वो लोकल मशीन्स आते हैं, आप लोगों के घर पे शायद होगा कोला, लोग वो मार्केटिंग ऐसा ही करते हैं, कोको कोला जैसा कोला मिलता है, नहीं मिलेगा. यू कैन डू इट. एग्जैक्ट टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टेस्ट का पेटेंट
उनके पास है। अगर आपको बनाना है तो खरीदो उनके पास से, फिर बनाओ और वही ब्रांड से बनाओ, कोको कोला। आगे बढ़ते हैं। Yeah. Sir, I have a doubt that in trademark only company only for company. What about the other two forms of business? Yeah, trademark can be for anyone. Even as a sole proprietor, I can make a brand and I can get it trademark. As a partnership also firm, I can make a logo and I can make a trademark. So it is open for everyone. Earlier in the play of defined creditor, Soham sir was creditor, and now in definition of liability, Soham sir is liability. No, Soham sir is not liability. Remember, Soham sir was representing bank. That bank becomes business का liability. Business is supposed to pay back to bank. कल सोहम सर नौकरी छोड़कर चले गए तो राहुल सर को सोहम सर को नहीं भरना है पैसा, उस बैंक को भरना है। फिर वहां पर महेश सर भी बैठे, आर्ची मैम भी बैठे, हम तो नौकरी करते हैं वहां पर। Your liability is not towards सोहम सर, your liability is towards bank. Hope that is clear. So yes, in earlier case सोहम सर was liability, creditor थे वो बॉटल के केस में, और फिर दूसरे केस में बैंक was your liability, bank loan was your liability. और उसके बारे में काफी बात कर लिया है। If someone purchases an online course for study by paying money, so he owns it, then will it be his property since we are not able to touch it or feel it? No. When you buy a course, you cannot do business out of it. बॉस तू पढ़ ले, फिर अगर तू वो कोर्स का खुद का बिजनेस शुरू करेगा, I'll sue you. Like ये वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं वो वीडियो से आप खुद पढ़ो, मगर फिर इस वीडियोस को तुम अगले साल खुद का कोर्स बना के रादर बेचना शुरू करोगे। एक साइड पर सोहम क्लासेस अपना कोर्स बेच रहा है और दूसरे साइड पर आप सोहम क्लासेस का ही कोर्स दूसरे को बेच रहे हो हाफ ऑफ द प्राइस में, आई sue you. Because when I'm giving you this lecture, your right is only restricted to watching this lecture and learning out of it. You cannot make money out of it because that right is only with me. Hope things are clear. Yeah. What if someone uses a short clip, just 5-6 seconds from a movie in his or her video and uploads it on YouTube or any other social media, then will he get sued by company who produced the movie? Yes, probably yes. जिस दिन आप एक लेवल पर कमाना शुरू कर दोगे, आप किसी की नजर में आओगे, that's when the problem starts. And that's where if you can understand हम इतनी मेहनत करते हैं, ये रोल प्ले क्यों किया? I could have put a movie का clip to make you understand who is creditor, who is capital, but it's a problem. जिस दिन पकड़ा जाएगा वो इंसान मुश्किल में आ जाएगा। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, मैंने भी दीवार का डायलॉग यूज किया, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, भाई तेरे पास क्या है? आई कैन यूज द डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आई कैन यूज दैट डायलॉग बट आई कैन नॉट यूज द सेम क्लिप एंड अर्न आउट ऑफ इट। आई कैन नॉट डू दैट or else I'll be in problem. If not today then tomorrow, if not today then tomorrow, because there is copyright issue. आगे बढ़ते हैं। We may have many photos and logos when we create a project, then in such case will there be any matter of copyright? Are you using it for some commercial purpose? No. मार्क्स लाने हैं आपको 100 में से 100, 100 में से 80, 100 में से 90, तो आप किसी का लोगो यूज कर लो, उसका इंफॉर्मेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन हाँ कॉलेज लेवल पर होता है प्लेगरिज्म जिसे कहते हैं, आप किसी का काम कॉपी नहीं कर सकते। दे हैव सॉफ्टवेयर्स जहां पर अगर आप जो नॉर्मली आप करते हो ना स्कूल के प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देते हो गूगल से उठाकर, जब कॉलेज लेवल पर जाओगे ना यू डू इट एंड यू विल बी कॉट, बिकॉज देयर आर, जैसे आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे देयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच विल गो थ्रू द प्रोजेक्ट। इट विल नॉट ओनली टेल यू दैट आपने कॉपी किया, इट विल आल्सो टेल यू कहां से कॉपी किया है। सो देयर यू कांट डू दैट। इस लेवल पर चलता है, कोई पकड़ेगा नहीं, आप कर सकते हो, मगर इस लेवल से सीखना शुरू करो कि खुद का आप कंटेंट बनाओ रादर देन किसी का कॉपी करके। इफ ओनर ड्रॉज मनी फ्रॉम बिजनेस देन कैन द ओनर बी एसेट? यस, ड्रॉइंग्स करने से ओनर बिजनेस का कहीं ना कहीं असेट बन गया, और कैपिटल इज ओनर गिविंग बेनिफिट टू बिजनेस, तो वो लायबिलिटी बन गया। तो यस, ही इज एक्टिंग एज बोथ। एंड ऑल्सो ओके, how can trademark and copyright be considered as real asset? I can sell it. Thumbs up. It's a brand which was earlier 1990s में it was owned by Parle. Parle कंपनी है ना, उसका था। फिर कोको कोला आया, उन्होंने खरीद लिया। तो जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने सिर्फ थम्स अप बनाने का फॉर्मूला, पेटेंट नहीं खरीदा,
लोगो भी खरीद लिया, ट्रेडमार्क भी खरीद लिया, जिसके पैसे दिए उस समय 1000 करोड़, उस समय 1990s में 1000 करोड़ में खरीदा था। थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और माजा, ये चारों ब्रांड पार्ले की थी, विच इज नाउ ओन्ड बाय कोको कोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यस, इट इज अ रियल एसेट, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। जब बिजनेस बेचोगे, ट्रेडमार्क भी बेचोगे, कॉपीराइट भी बेचोगे। कॉपीराइट की अगर बात करूं, टू स्टेट्स मूवी, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल रिटन बाय दैट गाय भगत, चेतन भगत। तो फ्री में बना दे दिया? नहीं, ही चार्ज देम, ही सोल्ड राइट्स ऑफ दैट बुक टू द डायरेक्टर। आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन था और YRF था, दोनों में से एक था, आई जस्ट फॉरगॉट हु वाज द प्रोड्यूसर, मगर उनको वो राइट बेचा कि तू मेरी बुक में से मूवी बना सकता है। सो ही सोल्ड द कॉपीराइट। यस, इट कैन बी सोल्ड। and also in the definition of right it is given, it is the right which cannot be felt or touched, yes, not, but felt, as I told you, some of the power. Right is power, yes, you can feel it. As I told you, if I am owner of SCPL, I somewhere feel that power कि दूसरों से मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, I can feel that power. जब दूसरे बोल रहे हैं यार मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं हुए, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास हो गए, मेरे तो बैच भरे हुए, I have that power. I can feel that power. Sometimes even you can see, when you see this many number of students who are part of you, you can see that power, but you can't touch that power. That's intangible. Sir, in classification asset, we have 3 classifications. So in that fictitious asset, can we include cartoons as an example? As I told you, don't even talk about fictitious asset right now. So don't think, please don't think. मैं आपको वो लाइन ऑफ थिंकिंग दूंगा, उसके बाद सोचना, अभी मत सोचना। Sir, suppose the brand Adidas, there are people who sell shoes or products similar to brand and they change the name to something like different, like Adibas, but logo is still the exact same that of Adidas brand. So can that brand sue the people selling product, or will the trademark be relevant in that situation? They will sue them left, right, center. आप लोगो सेम यूज नहीं कर सकते। होप दैट इज क्लियर। तो वो जो होता है ना, वो फर्स्ट कॉपी में आ जाता है। तो जिस दिन पकड़ा गया, प्रॉब्लम में आ जाएगी। इफ यू हैव गॉन टू दुबई, इट्स इलीगल टू सेल सच ब्रांड्स, इट्स इलीगल टू सेल सच फर्स्ट कॉपीज। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इट्स इलीगल। सिमिलरली, इफ देयर आर पीपल हु सेल मेडिसिन बट पर्सनली और make medicine from a formula which is patented by someone, but it is not shown to the world that they are using it, what happens then? कौन था ये? आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सीक्रेट में थोड़ी करोगे, ऐसे कान में बोल गए किसी को बताना मत, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू डू बिजनेस लाइक दैट? यू हैव टू कम पब्लिक, कॉमन सेंस। यू आर यूजिंग, why you are doing all these efforts? मैं ये एफर्ट क्यों कर रहा हूँ? ताकि लोग देखें, लोगों को समझ में आए कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तभी तो ये इतना एफर्ट कर रहा हूं। बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग एवरीवन नो व्हाट यू आर डूइंग। देन हाउ कैन यू कीप इट सीक्रेट? किसी को मत बताना। कैन यू डू दैट? नो, यू विल नॉट डू दैट। और जैसे आप पब्लिक जाओगे, पता चल जाएगा बॉस फॉर्मूला यूज है, किसी ने ऑलरेडी पेटेंट किया है, पकड़े जाओगे जेल के अंदर सीधे। सो डोंट इवन ट्राई इट। कैन यू एक्सप्लेन फॉर फिक्टिशियस एसेट? लेक्चर सुनो, मैंने बताया था अभी बात नहीं करूंगा तो पूछो मत। What if for example someone bought a SIM card from Jio and has started using it, मतलब they have paid for the subscription and everything, and suddenly if they have stopped giving service from Jio, will they be liable to the consumer? Yes, definitely they are liable to consumer. Consumer की लाइन लग जाएगी उनके दुकान के बाहर, उनके सेंटर्स के बाहर। आपने कई बार देखा होगा ऐसा होता है। ठीक है, वो बिजनेस जैसे ही बंद होता है लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं, मेरा क्या? तो दैट्स बिकॉज उनसे बेनिफिट मिलना उनको बाकी है, कंपनी की लायबिलिटी है उनके लिए। सो यस, दे आर लायबिलिटीज। Property is something which is owned by you, and to own it you have to pay for it. So suppose Mr. X bought a house for 40 lakh by taking loan, and till date he is paying installment. So can this house be considered as his property? Yes, he has property in the form of 40 lakh of house, but at the same time his liability is also on towards the loan. Hope that is clear. जैसे मेरा पार्क प्लाजा इज माई प्रॉपर्टी, मगर उस पर मेरा लोन भी है। प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है मगर लोन मेरा 30 लाख का है, तो इन माई बुक्स 1 करोड़ का असेट दिखेगा, 30 लाख का लायबिलिटी दिखेगा, दोनों दिखेगा। होप दैट इज क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। दिस माइट सीम एज ऑड क्वेश्चन, डोंट वरी, मैं बहुत सारे ऑड क्वेश्चन फेस करता हूं, बट एज सेड इन द लेक्चर, द कैपिटल दैट ओनर गिव्स, पहले तो आपका लाइन गलत है, कैपिटल दैट ओनर गिव्स, कैपिटल इज ओनर का अकाउंट, मैं अपने आप को थोड़ी देता हूं, मैं पेन देता हूं, मैं डस्टर देता हूं, मैं हेडफोन्स देता हूं, मैं फोन देता हूं, मैं हूं, मेरा अकाउंट कैपिटल है, आपका सोच गलत है, मैंने पहले दिन से बताया है। व्हेन यू थिंक ऑफ कैपिटल, डोंट थिंक ऑफ कैश, डोंट थिंक ऑफ बैंक बैलेंस, डोंट थिंक ऑफ कार। व्हेन यू थिंक ऑफ कैपिटल, आपको राहुल सर दिखने चाहिए, इट इज राहुल सर's अकाउंट। आपका क्वेश्चन गलत है। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे आपने पूछा है, वैसे कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन का, मगर फिर भी पढ़ लेता हूं। The capital that the owner gives to the business is to be paid back to the owner once the business is shut down. But if the company like Reliance, where the founder of company has died, but the company can still not shut down, what happens to the liability? हम कंपनी की बात अभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो आगे रखेंगे। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। अगर एक बंदा है जिसका बिजनेस है, वो मर गया, तो अभी ये बिजनेस क्या करेगा? कुछ नहीं, बंद कर दो बिजनेस को। कैसे करेंगे? असेट्स को बेच दो। जैसे मैंने बताया, जैसे ही असेट्स को बेचेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पैसा आएगा। पैसा आएगा, सबसे पहले किसको पे करेंगे? थर्ड पार्टी को, कुनसर को, बैंक लोन को, मेरे को, और फिर जो पैसा बचा वो सेकंड पार्टी का। अब राहुल सर तो रहे नहीं, तो उनके बदले उनके भाई को, उनकी बीवी को, उनके मम्मी पापा को, उनको वो पैसा मिल जाएगा अगर बचा तो। सोल प्रोप्राइटरी की बात। कंपनी की बात जब कंपनी पढ़ेंगे तब, अभी नहीं करेंगे। आगे yeah, but the company is okay. Is the profit given by business included in paying off that liability? बेटा प्रॉफिट की बात मैंने अभी की नहीं ना, प्रॉफिट की बात करेंगे। As I told you, कोई भी वर्ड का उपयोग जाने बिना नहीं करेंगे। Have I talked about profit? तो you can't ask me about profit. I'll be coming to profit. उसके बाद प्रॉफिट की बात करेंगे। आपका क्वेश्चन अपने पास रखना, ठीक है? जब प्रॉफिट की मैं बात करूं, वर्ड प्रॉफिट यूज करूं ना, उस समय प्रॉफिट का सवाल पूछना। अभी तक मैंने वो वर्ड का उपयोग नहीं किया, तो आप नहीं पूछोगे। Things are clear. Sir, my doubt is that due to corona pandemic, the owner of the share in stock market are not receiving appreciation value. यानी आप इसकी बात कर रहे हो, for appreciation for the share. So will it still remain as an asset for them? बेटा, this all is part of business. Business is all about risk. मैंने बिल्डिंग लेके रखा है आज, मगर am I using that building for generating revenue? No, मैं मेरे घर में पढ़ा रहा हूँ, तो वो बिल्डिंग अब मेरा असेट नहीं है क्या? नहीं, still it is an asset. It's a temporary thing. हाँ, if this thing continues, then I might have to sell it. I might intend to sell it. Then from non-current it will become current asset, but still it will be sold. It has a realizable value. Still it has got that element in it. तो शेयर्स का प्राइस बढ़ा, शेयर्स का प्राइस कम हुआ, मगर आपका इंटेंशन खरीदने के समय क्या था? कि एप्रिसिएशन होगा, इसलिए आपने खरीदा था। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सारी चीजें, क्योंकि आप बिजनेस शुरू करते हो, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, बंद भी होता है, कंटिन्यू भी होता है, सब कुछ होता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। बट व्हेन यू स्टार्ट विद दिस रीजंस। व्हेन यू बाय असेट, यू बाय असेट विद दिस रीजन। फिर ये हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे सर, व्हाट इज द keen difference between stock and asset? Sir, difference between fruit and mango. Fruit is the head, mango is one of the example. Asset is the head, stock is one of the example. Building is an asset, benefit लेना बाकी है. Stock is an asset, benefit लेना बाकी है. Debtor is asset, benefit लेना बाकी है. Cash is asset, benefit लेना बाकी है. Machine is asset, benefit लेना बाकी है. Furniture is asset, benefit लेना बाकी है. ये सब asset है. तो स्टॉक और असेट में क्या डिफरेंस है? स्टॉक असेट है, मगर सारे असेट स्टॉक नहीं होते, मगर सारा स्टॉक असेट है। आगे सेकंड, इफ बैंक गिव्स लोन बेस्ड ऑन द बोरोवर्स कोलैटरल कैपेसिटी, देन व्हाई विल पीपल लाइक विजय माल्या एंड नीरव मोदी गेट बैंकरप्ट?
देखो मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का, बैंक को बोला ये 1 करोड़ से मैं बिजनेस का मशीन खरीदूंगा, फिर बिजनेस करूंगा, उसमें से जो कमाऊंगा उससे मैं आपकी लोन पे ऑफ करूंगा। बैंक ने बोला ठीक है। अब ये मकसद था, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने आपके पास से 70-80 लाख के कागज ले लिए, असेट ले लिए, असेट ले लिया, असेट का कागज रखा कि भाई अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो हम वो असेट को बेच देंगे और पैसा हम ले लेंगे। अब हुआ क्या, मैंने लोन लिया 1 करोड़ से, मुझे असेट खरीदना था जिससे मैं बिजनेस करूंगा, कमाऊंगा और पैसा लौटाऊंगा, मगर मैंने असेट नहीं खरीदा, मैंने खरीद ली एक मस्त मर्सिडीज गाड़ी। अब मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, लोगों को लगा अरे सोहम सर के पास बहुत पैसा आ गया, और प्रॉब्लम क्या है बताए, गाड़ी चलाने से पैसा कमाता नहीं है आदमी, पैसा मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग खरीदने से होता है, मगर वो तो मैंने खरीदा नहीं, तो कमा रहा नहीं हूं मैं, क्योंकि कमा नहीं रहा हूं तो पे नहीं कर पाऊंगा। होप दैट इज क्लियर। तो लोन पे करना बंद कर दिया। अब बैंक बोलता है असेट बेच दो, असेट बेचा मगर फिर भी पूरा पैसा तो आएगा नहीं, एंड दैट्स वेयर विजय माल्या, नीरव मोदी विल डिफॉल्ट एंड बैंक विल बी लूजिंग देयर मनी। जब जो मकसद से पैसा लिया है वो मकसद के अलावा कहीं पर पैसा डाल देते हो आप, एंड इफ दैट पर्पस इज नॉट अर्निंग यू इनफ, देन यू डिफॉल्ट एंड दैट्स वेयर द बैंक विल लूज आउट। बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है आपने, थोड़े बड़े हो जाओ तो ज्यादा बेहतर समझोगे, जिनको नहीं समझ में आया छोड़ देना, अभी उस लेवल पर हम आए नहीं है। आगे, sir, my doubt is in copyright concept, like for example if I want to use my song in my YouTube video, so should I have to take permission of the owner or not, as in some videos yes you have to use। अगर आप परमिशन नहीं लोगे तो कई बार अगर वो कॉपीराइटेड है तो आपको वो गाना बजाने का परमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो YouTube आपको एक ईमेल भी भेजेगा कि आपने ये गाना यूज किया है, उससे जो भी अब आप रेवेन्यू जनरेट करोगे वो आपकी नहीं होगी, YouTube ले लेगा पैसा, ऐसा आपको एक ईमेल आएगा। अगर वो गाने का कॉपीराइट नहीं किया है जिसने भी गाया है तो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। I have doubt in topic classification of liability in that topic based on period, can you please explain it with different example? Based on period, on last day of the current financial year जिसको पेबैक करना बाकी है वो पर्सन बन जाता है बिजनेस का लायबिलिटी। अब 31 मार्च 2021 को अगर आपको एक पर्सन को पैसा देना बाकी है और वो पैसा 31 मार्च 2022 तक पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी, और वो पैसा 31 मार्च 22 के बाद आपको पे करना है तो वो बन जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल इन द स्टार्टिंग ऑफ सेशन इफ एट ऑल यू हैव वॉच्ड। आगे, व्हाट इफ कुन सर डिडंट रिसीव द अमाउंट ही गिव टू राहुल सर्स बिजनेस, ये भी मैंने समझा लिया। बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, सारे एसेट्स बिकेंगे, जो पैसा आएगा वो पहले थर्ड पार्टी को पे करेंगे, पे करना बाकी है तो थर्ड पार्टी को, फिर अगर कुछ बचा तो राहुल सर को मिलेगा, मगर पैसे कम आए और कुन सर को ही नहीं मिला तो उनका भी नुकसान और राहुल सर तक तो पैसा जाएगा ही नहीं, उनका भी नुकसान। अब लोग सर ऐसा कैसा नुकसान, दैट्स व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट, रिस्क। आगे, I want more explanation on appreciation topic. Hopefully it is clear. It is a repeat question. If I buy logo of Apple, then the whole company is owned by me or only the logo? Do I own rather goodwill of Apple along with logo? आपको सब पे करना पड़ेगा. Goes like that. See, it goes like this. आप जब सेव पूरी खाने जाते हो तो वो सेव पूरी की डिश का बोलता है साहब 50 रुपया, तो 50 रुपये में सब आ जाता है, पूरी भी आ जाती है, दही भी आ जाता है, सेव भी आ जाता है, वो बटे का भी आ जाता है, चटनी भी आ जाता है। ही वोंट चार्ज यू डिफरेंटली कि सर ये पूरी 50 रुपये में, आप सेव डालने का 10 रुपये एक्स्ट्रा, दही डालने का 5 रुपये एक्स्ट्रा, चटनी डालने का 3 रुपये एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं होता है। 50 रुपये में सेव पूरी। तो वैसे ही जब आप कंपनी खरीदने जाओगे ना तो कंपनी में इफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सबका वो हिसाब लगाएगा और आपको एक प्राइस बोलेगा। And that is what you pay to Apple and buy the company. Hope that is clear. You have to pay for everything that is owned by Apple. Tangible, intangible, सारे assets का पैसा दोगे तब जाके Apple आप खरीद पाओगे। And believe me, ये Apple आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि ये बहुत महंगा है। इससे अच्छा है मार्केट जाइए, फ्रूट मार्केट में वो एप्पल खरीदिए, खाइए, मजा आएगा। ठीक है, ये एप्पल के बारे में मत सोचिए, वो टीम कुक को करने दीजिए। आगे चलते हैं। For example, if a person whose name is Rohit Kumar using a symbol which is copyright,
यूजिंग अ सिंबल विच इज कॉपीराइट, आपका क्वेश्चन गलत है। कॉपीराइट सिंबल के लिए नहीं है, सिंबल के लिए ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट तो वर्क ऑफ आर्ट, कॉपीराइट तो गाना, कॉपीराइट तो धुन, कॉपीराइट तो राइटिंग, उसके लिए होता है। अब सवाल गलत पूछ रहे हो। बट ऑन द अदर एंड, अ डिफरेंट पर्सन यूजिंग द सेम सिंबल एंड हिज नेम इज ऑल्सो रोहित कुमार, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन? एक बार SCPL, सोम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एक बार मैंने नाम ले लिया, उसका ट्रेडमार्क कर दिया, फिर अगर आपका नाम भी सोम है, आप वही ट्रेडमार्क करने गवर्नमेंट के पास जाओगे ना, एज आई टोल्ड यू, दे डू रिसर्च। ऐसे ही थोड़ी सबको बांटते घूमेंगे गवर्नमेंट वाले। दे विल डू रिसर्च, दे विल चेक आउट ये लोगो जो SCPL का लोगो है ना, वो इनफाइनाइट का साइन है, यू कैन नॉट टेक नाउ दिस लोगो इवन इफ योर नेम इज सोम, यू कांट, आपको दूसरा ही लोगो रखना पड़ेगा। गोज वेरी सिंपल। वो जगदीश, पता है जगदीश प्रसाद, तो दे वर ब्रदर्स। नाउ दैट जगदीश का जो राइट है ना, वो ट्रेडमार्क वो एक भाई के पास था, तो दूसरा भाई भी उसी नाम से चला रहा था, और बहुत सारे और लोग, परिवार के लोग वही नाम से चला रहे थे। फिर एक दिन उसने अपना राइट यूज किया, रातों रात सबको नाम बदलना पड़ा, कोई श्री जगदीश हुआ, कोई किसी ने तो नाम ही बदल दिया, जगदीश से ही निकल गया वो। सो दैट इज पावर ऑफ ट्रेडमार्क। इफ आई यूज माई राइट, यू हैव टू चेंज द नेम द डे आई यूज माई राइट। आगे, सर आई had not understand goodwill as a right. Hopefully now it is clear. It is my right to earn over and above others, which I own it. As I told you, when you go to McDonald's, you are ready to pay 300 rupees for a burger. But when you go to a local restaurant, and if that person charges 300, you won't pay. Why? Is McDonald's selling something which is very nutritious? Are they using some very good ingredient? No. It is their brand, it is their goodwill, it is their ability to earn. Only they can charge so much. A local restaurant can't charge 300 rupees. Starbucks, when you go to Starbucks, you are ready to pay 400 rupees. But when you go to a tea post, a local brand, and if they say 400 rupees का कॉफी, आप हंसोगे हैं कुछ भी, मेरे पूरे 10 दोस्त पी लेंगे ना, तो भी तेरा 400 रुपए का बिल नहीं होगा। अब क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है, स्टारबक्स में वो एबिलिटी है। That's goodwill. Hope that is clear. It is ability to earn over and above others. दूसरों से ज्यादा कमाने की क्षमता। That's goodwill. आगे बढ़ते हैं। कैन एरिया कंसिडर्ड राइट और प्रॉपर्टी? ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं है, ये पता नहीं, ये जो भी इंसान है ना, उसका पहले तो स्टेटमेंट सही करना है, इंग्लिश सही लिखो। कैन एरिया कंसिडर्ड राइट और प्रॉपर्टी, मुझे ये क्या कहना चाहते हो नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप अपना सवाल सही तरीके से ड्राफ्ट करिए, मुझे पर्सनली भेजिए, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। सो ये क्वेश्चन हम साइड में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य ब्रॉट AC एंड आफ्टर 3 years he sells it to his friend आयुष in free of cost, ठीक है। बट आफ्टर 5 months आयुष sold AC to his friend at 40,000. Can Aditya at that time sue Ayush for not selling the AC by earning profit? क्या है ये सवाल? नहीं समझ में आया, मेरा इतना IQ नहीं है बेटा, तो आपको सवाल वापस मुझे पूछना पड़ेगा। एक बार जो मैं समझ रहा हूँ, आदित्य का AC था, उसने आयुष को बेचा फ्री में, अब आयुष उसको 40,000 में बेचता है, तो आदित्य क्यों बीच में आएगा? भाई तूने मुझे बेच दिया, अब मैं उसको 40 में बेचूं, 4,000 में बेचूं, 4 लाख में बेचूं, आयुष बोलेगा तेरे को क्या, एक बार बेच दिया तो बेच दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, आदित्य शुड नॉट बी कंसर्न्ड। होप थिंग्स आर क्लियर। जो मैं समझता हूं उसके हिसाब से ये आंसर है। कैन द थर्ड पार्टी इन अ बिजनेस बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर्स? यू कैन नेम हिम इन्वेस्टर, बट ही इज बेसिकली फॉर बिजनेस इज अ लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को उसे पैसा लौटाना बाकी है। होप दैट इज क्लियर। डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट असेट। बहुत सारे डिफरेंसेस यार, तू तो यार मीनिंग समझ ले, डिफरेंस खुद समझ लेगा। असेट लायबिलिटी, असेट बेनिफिट लेना बाकी है, लायबिलिटी बेनिफिट देना बाकी है, सिंपल। आगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी। राहुल सर बिजनेस को बेनिफिट देंगे, business is yet to return him back, he is internal liability. Anyone other than Rahul sir in our example gives benefit to business, business is yet to pay back, that person is external liability. और तीसरा करंट एंड नॉन करंट असेट। 31 मार्च को जो भी राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस ओन करता है और बेनिफिट मिलना बाकी वो असेट, अगर वो असेट में से बेनिफिट 31 मार्च 2022 तक चलेगा
और उसके बाद खत्म हो जाएगा तो करंट असेट, और 31 मार्च 22 के बाद भी वो चलेगा तो वो नॉन करंट असेट। जैसे आज 31 मार्च है, ये पेन चल रही है तो SCPL के लिए ये पेन हो गई असेट, मगर 31 मार्च 21 से मैक्सिमम क्या चलेगी, 22 तक चलेगी या 22 के बाद भी चलेगी, तो आंसर इस 22 तक ही चलेगी, तो ये हो गई मेरी करंट असेट। मगर ये जो बोर्ड है ये 22 के बाद भी चलेगा, 23 में भी होगा, 24 में भी होगा, 25 में भी होगा, बोर्ड को कुछ नहीं होने वाला है, तो ये बोर्ड आपका हो जाता है नॉन करंट असेट। होप थिंग्स आर क्लियर। Nowadays loan can be paid before their period finishes. Then if anyone has taken loan for 5 years and pays it off in 6 months, then is it a current liability or non-current liability? See, that anyone is business. Now business knows कि वो कब पे करेगा. अगर business is intending to pay it within 6 months, then it will term it as a current liability. मगर अगर business is intending to pay it in 10 years, then it is a non-current liability. It's all about intention. All about intention. The word is intention. Hope things are clear. Why goodwill is considered as intangible asset? Because you can't see it, you can't touch it, you can't feel it. I have ability to earn over and above other tuition class. I have that ability, and that's why I'm doing fantastic. I earn more than any other tuition class wala in Baroda, any other tuition class wala. But can you see that ability when you meet me? I'm a 5'4" guy, okay, with normal clothing, okay, with long hair, कभी कभी शॉर्ट होते हैं, कभी बहुत शॉर्ट होते हैं, मगर इसमें वो एबिलिटी कहाँ दिख रही है? वो जो एबिलिटी टू अर्न ओवर एंड अबव अदर्स, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी फाउंड आउट. यू कैन सी मी एज अ पर्सन, बट यू कांट सी दैट एबिलिटी इन मी, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंटेंजिबल. पॉइंट नंबर 1. Why goodwill is considered as intangible asset and not fictitious? It has fictitious है ना, जो जिसमें बिकने की क्षमता नहीं है. बॉस, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा ना, बिजनेस बंद करूंगा, I'll sell this business to someone, and when I'll sell this business to someone, I will charge him for this goodwill also. जैसे मैं बताया ना, वो पानी, वो दही सेव पूरी का एग्जांपल, चटनी का भी चार्ज लूंगा, सेव का भी चार्ज लूंगा, दही का भी चार्ज लूंगा, वो पोटेटो यूज किया उसका भी चार्ज लूंगा, पूरी का भी चार्ज लूंगा. जिस दिन बिजनेस बेचूंगा, बिल्डिंग का भी चार्ज लूंगा, फर्नीचर का भी चार्ज लूंगा, एसी का भी चार्ज लूंगा, गुडविल का भी चार्ज लूंगा. इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट फिक्टिशियस. एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस. इंटेंजिबल एसेट्स हैव रियलाइजेबल वैल्यू. पेटेंट कैन बी सोल्ड, गुडविल कैन बी सोल्ड, ट्रेडमार्क कैन बी सोल्ड, कॉपीराइट कैन बी सोल्ड. फिक्टिशियस एसेट अभी तक मैंने बात ही नहीं की उसके एग्जांपल्स की, बट उसमें जो आएगा उसमें एबिलिटी नहीं है बिकने की. आखिरी में, व्हाट इज द टाइम फॉर बिजनेस टू रिटर्न बैक अमाउंट गिवन बाय थर्ड पार्टी टू बिजनेस? वो तो बिजनेस और थर्ड पार्टी के बीच में क्या बात हुई है उस पर डिपेंड करता है. अगर थर्ड पार्टी ने बोला मुझे 1 महीने के अंदर पैसा दे, तो वो 1 महीना टाइम होगा. अगर उसने बोला 6 महीने तो 6 महीना, उसने बोला 1 साल तो 1 साल, उसने बोला 10 साल तो 10 साल. इट इज बिटवीन देम व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड. एंड आई थिंक देयर इट एंड्स. ऑलमोस्ट सारे आपके डाउट्स खत्म हो गए. पीछे से आर्ची मैम भी ऐसा कर रही है और मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, तो होपफुली आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं. होपफुली आपकी सोच सही जा रही है. सोचते रहिए, गलत तो गलत मगर सोचते रहिए, ठीक है. मगर सोच, अब सी इट गोज लाइक दिस. एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग स्कूटर, तो मेरे लिए वो सोच बहुत मुश्किल थी कि फर्स्ट से न्यूट्रल कैसे होता है और न्यूट्रल से फोर्थ कैसे जाता है और फोर्थ से न्यूट्रल कैसे जाता है, जब मैंने शुरू किया था. और जैसे जैसे सीखता गया, सोच डेवलप होती गई, फिर डाउट्स का लेवल थोड़ा ऊपर होता गया. तो उसी तरह से मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा कि डाउट्स का लेवल थोड़ा 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 करके ऊपर जाएगा. तो ऊपर करते रहिए, डाउट का लेवल पूछते रहिए, ठीक है. सो देयर आई एंड द सेशन. सेशन बहुत लंबा है मगर इट विल बी अ गुड हेल्प टू यू. सो कीप लर्निंग. आई से ये पूरा जो लिखा है एक बार लिख लेना, इसकी नोट बना लेना. इट विल बी गुड हेल्प. क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ असेट, डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, इट विल बी गुड हेल्प, ठीक है. सो हियर आई एंड द सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. एज आई ऑलवेज से, #घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, and take care of your mental and physical health. Bye bye.